Good morning, students. Welcome to your GK class. Students, today we are going to discuss lesson number 54. That is Think Green, Save the Planet. Students, as you know, we are living on the planet which is known as Earth. And Earth has so many features due to which life is possible on Earth. Okay, so we will read some terms which are related to the environment of our planet and also which are making our life possible on this planet. So let's start lesson number 54. Yes, students. So when we read about the terms global warming, greenhouse gases, or endangered species, we often wonder what we can do to make a difference. So, in global warming, which is rise in temperature of our planet Earth, greenhouse gases, which help in trapping the solar heat, or endangered species means the plants and animals which are going to extinct, जो खत्म होने के लेवल पर हैं, लिमिट पर हैं, उनको हम endangered species बोलते हैं. How these terms are different? Okay, so let's just read some terms which are related to our environment. Number 1, inorganic matter other than plants or animals which do not contain carbon as an essential component of all living thing, means the material which is not living, which is non-living. Okay, living नहीं है बल्कि non-living matter है, and जिनमें कार्बन जो है स्टूडेंट्स, it is not an essential component, okay, like it is present in living things. तो उन materials को, उन substances को हम क्या बोलते हैं? Inorganic. Now organic means referring or derived from living organisms. In chemistry, organic refers to any compound containing carbon. Students, in living term, in bio term, we use organic for living organisms, चाहे वो plants हैं या फिर वो animals हैं. But अगर हम chemistry की बात करें, then organic का meaning होता है the compounds which contain carbon. Okay, what we call the compounds which contain carbon. Next term we have is biodegradable, means capable of being broken down by living organisms. For example, students, अगर हम biodegradable waste की बात करें तो वो चीज़ें जिन्हें हम आसानी से decompose कर सकते हैं, they can be easily decomposed or broken down by the living organisms like decomposers, and therefore they create less pollution. वो pollution को कम करते हैं. Okay, so ideally students, जो सारा waste होना चाहिए हमारा वो biodegradable होना चाहिए, like paper, wood. Okay, in place of plastic. Plastic is not biodegradable, it is non-biodegradable. Now next we have biological diversity or biodiversity. It means, students, the variety of plant and animal life in the world or in a particular habitat. किसी भी जगह पर स्टूडेंट्स या हमारे जो वर्ल्ड है वहाँ पर जितने भी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं? दैट इज कॉल्ड biodiversity or biological diversity. So you can also underline the main words in these definitions or sentences. Next we have biomass, the total amount of living organisms in a given area. So जितने भी किसी particular area में living organisms रहते हैं उसको total amount को हम क्या बोलते हैं? Biomass. Next is biosphere. Biosphere means that part or layer of the earth जहाँ पर plants and animals exist करते हैं, और we say where life can exist. That is called biosphere. Ecosystem. Ecosystem means, friends, a combination of all living things that live and thrive in a certain environment. As you can see in the picture also, students, here you can see an example of ecosystem, that is food web. You can see how the animals, they are getting their food from each other. Like plants हैं
they are food for herbivores, herbivores are food for carnivores, okay, and omnivores, they depend on plants and also animals. So this कॉम्बिनेशन जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों रहते हैं, दैट combination is called ecosystem. Endangered species. Endangered species means students a species threatened by extinction. जो species खत्म होने वाले हैं, चाहे वो plants की हों या animals की हों, उन species को हम किस category में रखते हैं? Endangered species. Okay. Now next term is environment. All the external factors, conditions and influences that affect an organism or a community, okay, or we say students everything that surrounds an organism, चाहे वो natural हो, okay, और human built elements हैं like human made, man made जिन्हें हम बोलेंगे, और they are लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स, ये सभी चीज़ें मिलाकर स्टूडेंट्स हमारा क्या बनाती हैं? एनवायरनमेंट बनाती हैं. ओके, सो ऑल दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंडीशंस और विच अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म और विच सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ रहती हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट. हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स स्टूडेंट्स आपने क्लास 6 में अपने लेसन में भी पढ़ा है साइंस में. व्हाट इज अ हैबिटेट? द होम और नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एनी प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. टॉक्सिक. टॉक्सिक वी से पॉइजनस, which are harmful to living organisms. Substances which are harmful to living organisms, they are called toxic. Wetlands. Saturated lands containing marshes and swamps. Students, जो दलदल वाले एरियाज रहते हैं जहाँ पर पानी रहता है पर प्लस मिट्टी थोड़ा लाइक दलदल वाले एरियाज रहते हैं, मार्शेज हैं, स्वैम्प्स हैं, एंड आर inundated for large parts of the year. और इसी तरह से वो ज़्यादातर साल में रहते हैं, बहुत कम ड्राई रहते हैं ये एरियाज. ऑल्सो समटाइम्स कॉल अर्थ किडनीज. इनको अर्थ की किडनीज भी बोलते हैं. लाइक ट्रीज को हम अर्थ के लंग्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ही इन एरियाज को हम अर्थ के किडनीज बोलते हैं बिकॉज दे हेल्प इन फिल्टरिंग वाटर. लाइक हमारी जो किडनी होती है, इट हेल्प्स इन फिल्टरिंग ब्लड. सिमिलरली दे हेल्प इन फिल्टरिंग वाटर. Afforestation. Planting trees where there were none before. Students, like deforestation होता है cutting of trees और इसका opposite है planting trees. Afforestation मतलब पेड़ों को उगाना. Acid rain. Students, acid rain when the industries in which fossil fuels are burnt, जब fossil fuel like coal and petroleum they are burnt to get heat energy, देन स्टूडेंट्स उनके साथ जब ये फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, एंड व्हेन दे कंबाइन विद वाटर वेपर इन द एयर तो मिलकर वो एसिड्स बनाते हैं जिन्हें हम सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बोलते हैं. और जब स्टूडेंट्स ये वाटर जिसके अंदर ये एसिड्स मिक्स है, इसीलिए इसको कॉन्टामिनेटेड वाटर बोलेंगे हम. व्हेन दिस कॉन्टामिनेटेड वाटर फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, इट इज कॉल्ड एसिड रेन. क्या बोलते हैं हम उसको? एसिड रेन. एंड स्टूडेंट दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर इकोसिस्टम. चाहे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सॉइल है, एयर है, सबको ये एसिड्स क्या करते हैं? खराब कर देते हैं. नेक्स्ट, एरिड. एरिड स्टूडेंट्स हम किन रीजन्स के लिए यूज करते हैं? वेयर प्रेसिपिटेशन इज वेरी लो, मीन्स रेनफॉल इज वेरी लो इन क्वांटिटी, एंड मोस्ट क्रॉप्स and where irrigation is required for agriculture. Students, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है and irrigation is required for agriculture for crops, तो that region is called arid region. CFCs, any of the various compounds. CFCs के स्टूडेंट्स अगर आप फुल फॉर्म देखें, they are called chlorofluorocarbons. एंड स्टूडेंट्स ये ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड कार्बन ये प्रेजेंट रहते हैं, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. इन 1972 स्टूडेंट्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि ये जो CFCs हैं ये हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है ओजोन लेयर का, जो सन की हार्मफुल रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको
उस लेयर को ये डिप्लीट कर देती है, पतला कर देती है, थिन कर देती है. दैट इज वाई स्टूडेंट्स these CFC compounds, they are not good for the ozone layer of our earth. Conservation. What is conservation, student? The protection and management of natural resources to ensure long term benefits. स्टूडेंट जब भी हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे हमारे वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हो, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हो, लाइक वाटर, सॉयल, सनलाइट, ट्रीज, कोल, पेट्रोलियम, सो ऑल दीज रिसोर्सेज, जब इनको हम प्रोटेक्ट करते हैं और इस तरह से मैनेज करें कि ये बहुत ज़्यादा टाइम तक चलें, दैट इज कॉल्ड इट्स कंजर्वेशन. नाउ डिफॉरेस्टेशन, पहले भी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि व्हेन द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज देयर, जब बहुत सारे ट्रीज कट जाते हैं जनरली रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ओके, सो दैट इज कॉल्ड deforestation. Large scale cutting of trees for any commercial purpose is called deforestation. Okay, now we have drought. Drought, students, a natural phenomenon that occurs when precipitation is significantly below normal levels. Means, students, in easy language, if you see, when there is no rainfall for a long time, then the situation that occurs is called drought. And what are the effects, student? It causes the water level to drop. Student, जो water level है वो कम हो जाता है, and the crops or the plants they die. This extended period of dry weather usually lasts longer, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, and leads to losses for human community. For example, crop damage and water supply shortage. Students, human beings or living organism, they have to suffer the scarcity ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाती है, क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं, एंड दैट इज वाई दिस सिचुएशन इज नॉट अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट वी हैव एमिशंस. एमिशंस, स्टूडेंट्स, द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर ओवर अ पर्टिकुलर एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम. लाइक इंडस्ट्रियल, स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल एमिशंस की बात करें, या फिर हम जब व्हीकुलर एमिशंस की बात करते हैं, तो जब फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं एंड दे रिलीज दीज ग्रीन हाउस गैसेस इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एमिशन. इरोजन. Erosion is the word which is mainly related to soil. The gradual wearing away of land surface by wind, water or any other natural agent. Also a human-made problem like student deforestation. That is called erosion. Students, जब soil की जो top layer है वो वाटर, विंड या किसी भी नेचुरल एजेंट की वजह से रिमूव हो जाती है, और सम ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो लाइक डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ट्रीज जो हैं दे बाइंड द रूट्स ऑफ द ट्रीज. ओके, तो जब ये एक सिचुएशन आती है एंड द टॉप सॉइल इज रिमूव, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. एंड टॉप लेयर बिकॉज मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल, तो दिस इज अ लॉस टू एग्रीकल्चर. स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं वो फर्टाइल सॉइल में अच्छी होती हैं, और अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो क्रॉप्स की ग्रोथ पर भी इफेक्ट आएगा. ओके, हैजार्डस वेस्ट. हैजार्डस मतलब स्टूडेंट नुकसानदायक. वेस्ट दैट कुड प्रेजेंट डेंजर्स थ्रू द कंटामिनेशन एंड पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट require special disposal techniques to make it harmless or less dangerous. Students, ऐसा वेस्ट जो हमारे एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है, विच इज हार्मफुल, ओके, इट कैन पॉल्यूट द एनवायरमेंट और इट कैन कॉन्टामिनेट द एनवायरमेंट, तो इसके लिए स्पेशल डिस्पोजल टेक्निक्स को लिया जाता है ताकि उसको हम थोड़ा सा हार्मलेस कर सकें और वी कैन मेक इट लेस डेंजरस. लाइक हॉस्पिटल वेस्ट, स्टूडेंट्स, हैजार्डस वेस्ट रहता है हमारा. इंडस्ट्रियल वेस्ट विच कैन, इफ इट इज मिक्सड विद वाटर, इट कैन मेक द वाटर पॉल्यूट, और if it goes into the air then it can cause air pollution. So these such type of wastes are called hazardous waste. Pesticide. So in pesticide, as you can see in the picture also, what is this? A substance or a mixture of substances, mostly chemicals, which are used for killing or repelling insects. ठीक है, कीड़ों को मारने के लिए या भगाने के लिए इंसेक्ट्स को यूज किया जाता है. द इंसेक्ट्स विच आर हार्मफुल टू क्रॉप्स, एंड
can accumulate in the food chain or contaminate the environment if misused. But friends, इसका जो प्रॉपर यूज है दैट इज टू किल एंड रिपेल द इंसेक्ट्स जो क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है. बट इफ दे आर ओवर यूज्ड देन दे कैन बी जस्ट कलेक्ट इन द फूड चेन. ये फूड चेन में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं बिकॉज द फूड विच विल बी consumed by the herbivores, then to carnivores and then to omnivores. तो इस तरह से ये जो केमिकल्स हैं वो हम तक पहुंच जाते हैं, हमारी बॉडी तक. जो खाना हम खाते हैं उनसे वो केमिकल्स हमारी बॉडी में भी आ जाते हैं. इसीलिए पेस्टिसाइड्स हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं, हमें लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज करने चाहिए. रिसाइक्लेबल. रिसाइक्लेबल मीन्स स्टूडेंट जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, लाइक पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, ओके, ऑयल एंड द मेटल, जिनको हम दोबारा से प्रोसेसिंग करके नए प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं. सच टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड रिसाइक्लेबल. और आजकल बहुत ज़रूरत है स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों की. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इनकी शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट यूवी. द रेडिएशंस, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है स्टूडेंट्स, दे आर रिलीज्ड बाय द सन. ओके, इनको कौन रेडिएट करता है? सन करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द वेवलेंथ ऑफ range of 200 to 400 nanometers, also known as ultraviolet light. Ultraviolet radiation students electromagnetic radiations रहते हैं which are radiated by sun. sun इनको release करता है and the wavelength range is 200 to 400 nanometers. Okay, these are not good for us. ओजोन लेयर जो है स्टूडेंट्स इन्हीं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है. इसीलिए ओजोन लेयर हमारे अर्थ के लिए एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट और यू कैन से एक अम्ब्रेला का काम करती हैं. ओके, सो आई होप ऑल दीज टर्म्स आर क्लियर टू यू. सो स्टूडेंट जस्ट अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एज आई हैव अंडरलाइंड एंड लर्न दीज पॉइंट्स so that you are able to describe them. Okay, thank you students, thanks a lot.